Namaskar to all of you. Again, myself Asit Kumar Patnaik, coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Today I will discuss travelling allowance part 2. Already I have discussed part 1 of travelling allowance, and in part 1 already I have discussed traveled by air and about rail journey. So please subscribe my channel so that you can get notification, and also you can see all the parts of traveling allowance. Now I am going to discuss the second part of traveling allowance. So in this part I will discuss journey by road. Already I have discussed in my first part, already I have discussed journey by air and journey by rail. So third one, journey by road. Mileage allowance, pay level in pay matrix 14 and above, actual fare by any type of public bus including AC bus, or at prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC taxi, or at prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motorcycle, moped, etc. Next, pay level 6 to 13A, it is the second pay level in case of mileage allowance. Same as above, जो भी 14 एंड अबोव पे लेवल में जो भी फैसिलिटीज है यहाँ पर सेम फैसिलिटीज है, बट एसी टैक्सी विल नॉट बी परमिसिबल इन 14 एंड अबोव पे लेवल. एसी टैक्सी फैसिलिटी अवेलेबल, बट हियर द सेम फैसिलिटी अवेलेबल, बट एसी टैक्सी विल नॉट बी परमिसिबल. 4 and 5 पे लेवल, actual fare by any type of public bus other than AC bus, or at prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motorcycle, moped, etc. Next, pay level 3 and below, it is actual fare by ordinary bus only, or at prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own car, scooter, motorcycle, moped, etc. At places where no specific rates have been prescribed either by the Directorate of Transport of the concerned state or of the neighboring states. So we know that Directorate of Transport fix the rates for road mileage, but actually in those places specific rates are not fixed by the Directorate of Transport. Then the following two ways our journey would be reimbursed. For journeys performed by own car or taxi, it is rupees 24 per kilometer. For journeys performed by auto rickshaw, own scooter, etc., rupees 12 per kilometer. Okay, if the rate is not fixed by Directorate of Transport, then these two rates given to the entitled holders, to the employees. Clear? But majority cases actually Directorate of Transport actually fix the rate. So according to this, our journey would be reimbursed. At places where no specific rates have been prescribed, the rate per kilometer will further rise by 25% whenever dearness allowance, but DA increases by 50%. Just remember, where no specific rates have been prescribed. ओके, शेयरिंग ऑफ ऑटो और टैक्सी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. द एक्चुअल फेयर पेड सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ हाफ ऑफ द एंटाइटलमेंट विल बी अलाउड. यदि हम ऑटो और टैक्सी शेयरिंग में जाते हैं तो हमको जो हमारा फेयर रीइंबर्स होगा वो हाफ ऑफ द एंटाइटलमेंट विल बी अलाउड. बहुत इंपॉर्टेंट है. For travel as a pillion rider,
half of the entitlement by scooter or half of the cost of propulsion, whichever is less, will be allowed. Again, it is also important one. Question is coming in case of pillion rider. Again, half of the entitlement, and not full entitlement, half of the entitlement. Okay, by scooter or half of the cost of propulsion, whichever is less, will be allowed. So sharing, and in sharing of auto or taxi, or in case of pillion rider, okay, we are getting half of the entitlement, not full entitlement. Journeys by tonga, auto rickshaw, cycle rickshaw are equated to journey by scooter or motorcycle. स्कूटर और मोटरसाइकिल जर्नी में जो भी जिस रेट में हमको रीइंबर्समेंट मिलेगा, उसके हिसाब से ऑल्सो टोंगा, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा में भी सेम वे में हमको रीइंबर्समेंट हम कर सकते हैं. रोड माइलेज फॉर जर्नी फ्रॉम रेसिडेंस और ड्यूटी पॉइंट टू एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन एंड वाइस वर्सा इज अलाउड ओनली इफ रेसिडेंस इज विद इन द म्युनिसिपल लिमिट्स ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एम्प्लॉय. यदि एम्प्लॉय का रेसिडेंस म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर है, तो जो रोड माइलेज जर्नी को रीइंबर्समेंट किया जाएगा वो रेसिडेंस और ड्यूटी पॉइंट टू एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन. इन अदर केसेस बेसिकली रोड माइलेज वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू जर्नी फ्रॉम ड्यूटी पॉइंट टू नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन एंड वाइस वर्सा. तो विद इन म्युनिसिपल लिमिट्स, ओके, फ्रॉम रेसिडेंस or from duty point to airport or railway station, the journey can be reimbursed, the fare can be reimbursed. But in other cases, the reimbursement by road mileage would be restricted to journey from duty point to nearest airport or railway station and vice versa. Similarly, however, employees living in cities with the urban agglomeration will be reimbursed to and fro taxi or scooter charges from their residence in urban agglomeration to railway station or bus stand or airport. Just remember, the actual fare paid or the entitlement, whichever is less, will only be allowed. If travelled by a higher mode than the entitled one, the fare by the entitled mode only will be allowed. यदि हम हायर मोड रोड माइलेज में, यदि हम हायर मोड में जाते हैं, तब हमारा जो एंटाइटलमेंट होगा वो हायर मोड के हिसाब से नहीं होगा. जो हमारा एंटाइटलमेंट होगा उसके हिसाब से हम रीइंबर्समेंट हमको किया जाएगा. इफ ट्रैवल्ड बाय लोअर मोड दैन द एंटाइटल वन, तो जो एक्चुअल फेयर है वो रीइंबर्समेंट होगा. यदि हम लोअर मोड में जा रहे हैं, जो हमारा एंटाइटलमेंट मोड है उससे हम लोअर मोड में जा रहे हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वही रीइंबर्समेंट होगा. फॉर ट्रैवल बाय रोड बिटवीन प्लेसेस कनेक्टेड बाय रेल, नॉर्मली द रोड माइलेज, सपोज हम जो रोड माइलेज जर्नी कर रहे हैं उसमें रेल कनेक्ट है, मगर हम रोड माइलेज ले रहे हैं, तब हमारा जो रीइंबर्समेंट होगा it is restricted to the entitlement of rail journey. उसी ट्रैवल जर्नी को हम रेल में कर सकते हैं, मगर हम रेल में जर्नी नहीं कर रहे हैं, हम रोड माइलेज में जा रहे हैं, तो इस केस में जो भी रीइंबर्समेंट का रेस्ट्रिक्शन होगा जो हमारा एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा, इट मीन्स हमको रेल फेयर के हिसाब से मिलेगा. अदरवाइज इससे लेस होगा तो उसी लेस के हिसाब से मिलेगा. इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस द फुल रोड माइलेज में बी अलाउड इन पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट केस में जो फुल रोड माइलेज हम रीइंबर्स कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है. ओके, ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट. अदरवाइज हमारा एंटाइटलमेंट के हिसाब से होगा. हम एंटाइटल है रेल के लिए, मगर उसी में रेल फैसिलिटीज है, मगर हम रोड माइलेज ले रहे हैं, तो हमारा जो रीइंबर्समेंट होगा इट मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड टू द रेल फेयर. ओके, अदरवाइज लेस देन दैट. इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस फुल रोड माइलेज में बी अलाउड इन पब्लिक इंटरेस्ट.
फॉर लोकल जर्नीज फ्रॉम द ड्यूटी पॉइंट विद इन द टूर स्टेशन नो रोड माइलेज विल बी अलाउड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोकल जर्नीज होता है, ठीक है, उसमें बेसिकली विद इन द टूर स्टेशन में हमारा जर्नी हो रहा है, तो नो रोड माइलेज विल बी अलाउड। कोई रोड माइलेज ओके हमको नहीं मिलेगा। जर्नी बाय रोड बिटवीन प्लेसेस नॉट कनेक्टेड बाय रेल। जो प्लेस हम जर्नी कर रहे हैं वहां पर रेल फैसिलिटीज नहीं है, तो मे ट्रैवल बाय द एंटाइटल्ड कन्वेयंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एट देयर डिस्क्रिप्शन। मोड ऑफ कन्वेयंस नीड्स नो अप्रूवल फ्रॉम हायर अथॉरिटी। द एंटाइटलमेंट विल बी द रोड माइलेज एट द रेट्स इंडिकेटेड अबव। Next, cancellation charges levied by the State Transport Corporation on cancellation of tickets for official journey due to exigencies of public service may be reimbursed by the heads of departments। कोई भी टिकट कैंसिल हो रहा है कोई एक्सीजेंसी टाइम में, तो उस केस में रीइंबर्स होगा। सर्विस टैक्स, एजुकेशन सेस एंड अदर लेवीज आर ऑल्सो रीइंबर्सेबल। क्लियर? तो ये पूरा रोड माइलेज के ऊपर चला गया। नेक्स्ट, फोर्थ वन, एंटाइटलमेंट फॉर जर्नीज बाय सी और बाय रिवर स्टीमर। फर्स्ट वन फॉर प्लेसेस अदर देन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड। अब फर्स्ट केस में एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड, देखिए क्या क्या फैसिलिटीज है। पे लेवल 9 एंड अबोव हाईएस्ट क्लास, जो हमारा जर्नी होगा बेसिकली सी पर स्टीमर में, तो उसमें 9 एंड अबव हाईएस्ट क्लास, पे लेवल 9 एंड अबव। 6 to 8 लोअर क्लास इफ देयर बी 2 क्लासेस ओनली ऑन द स्टीमर। स्टीमर में 2 क्लासेस है, तो 6 to 8 लोअर क्लास। नेक्स्ट, पे लेवल 4 and 5 इफ 2 क्लासेस ओनली द लोअर क्लास, इफ 3 क्लासेस द मिडिल और सेकेंड क्लास, इफ देयर बी 4 क्लासेस द थर्ड क्लास। क्लियर? 3 and बिलो लोएस्ट क्लास, इसको याद रखना है। देन अभी चलेंगे फॉर ट्रैवल बिटवीन द सेकेंड वन, फॉर ट्रैवल बिटवीन द मेन लैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड बाय शिप्स ऑपरेटेड बाय द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड एंड शिप्स ऑपरेटेड बाय द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पर देखेंगे पे लेवल के हिसाब से 9 एंड अबव डिलक्स क्लास, 6 to 8 फर्स्ट क्लास और ए कैबिन क्लास, 4 and 5 सेकेंड और बी कैबिन क्लास, 3 and बिलो बंक क्लास। तो दोनों को हम याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्ट अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप आइसलैंड। एंड अनदर वन ओके, जर्नी by using steamer or ship in Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep Island. Clear? And the journey operated by the Shipping Corporation of India. Next बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली अलाउंस। दिल्ली अलाउंस में हमको टाइम के हिसाब से मिलेगा, पर डे के हिसाब से, जो मिडनाइट टू मिडनाइट कैलकुलेशन होता है। फर्स्ट हम देख लेंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा। पे लेवल 14 एंड अबव जो दिल्ली अलाउंस हमको मिलता है, उसमें होटल रीइंबर्समेंट, फूड एंड ट्रैवलिंग, 3 चीज को हमको याद रखना है। ओके, होटल रीइंबर्समेंट, फूड रीइंबर्समेंट एंड ट्रैवल रीइंबर्समेंट, इसमें हम देखेंगे। 14 एंड अबव रीइंबर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस अप टू ₹7,500 पर डे। एक दिन में 7,500 हम रीइंबर्स कर सकते हैं होटल में। Then next one, reimbursement of SC taxi charges as per actual expenditure for travel within the city. Okay, actual expenditure travel by SC taxi, ये ट्रैवलिंग के ऊपर हो गया। देन फूड बिल्स, रीइंबर्समेंट ऑफ फूड बिल्स नॉट एक्सीडिंग ₹1200 पर डे। जो फूड रीइंबर्समेंट पर डे होगा वो ₹1200 होगा। ये जो पर डे कैलकुलेशन होगा मिडनाइट टू मिडनाइट होगा, ठीक है। और टाइमिंग इसके बाद में टाइमिंग आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, पे लेवल 12 and 13A होटल में देखेंगे, रीइंबर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस अप टू ₹4,500 पर डे। रीइंबर्समेंट ऑफ SC टैक्सी चार्जेस
of up to 50 kilometer per day for travel within the city. There is no limit in case of 14 and above, but here limit is there. Only within the city. It means reimbursement of SC taxi charges up to 50 kilometer per day for travel within the city. But there is no limit in case of pay level 14 and above. Food bills 1000 per day. Reimbursement of food bills not exceeding rupees 1000 per day. Next pay level 9 to 11 देखेंगे हम होटल अकोमोडेशन. रीइंबर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस ऑफ अप टू रुपीज 2250 पर डे. ट्रैवलिंग रीइंबर्समेंट ऑफ नॉन एसी टैक्सी चार्जेस. यहां पर एसी टैक्सी हम रीइंबर्स नहीं कर सकते. रीइंबर्समेंट ऑफ नॉन एसी टैक्सी चार्जेस अप टू रुपीज 338 पर डे. यहां पर लिमिट है. जो नॉन एसी टैक्सी चार्जेस हम करेंगे वो अप टू रुपीज 338 पर डे फॉर ट्रैवल विद इन द सिटी. फूड बिल्स रीइंबर्समेंट ऑफ फूड बिल्स नॉट एक्सीडिंग रुपीज 900 पर डे. फूड बिल्स जो रीइंबर्स होगा मैक्सिमम 900 होगा. फिर हम चलेंगे 6 to 8. होटल अकोमोडेशन 750 पर डे. रीइंबर्समेंट फॉर होटल अकोमोडेशन और गेस्ट हाउस ऑफ अप टू रुपीज 750 पर डे. रीइंबर्समेंट ऑफ नॉन एसी टैक्सी चार्जेस of up to rupees 225 per day for travel within the city. Next, reimbursement of food bills not exceeding rupees 800 per day. Hotel accommodation rupees 700 per day. Reimbursement of non-AC taxi charges up to rupees 225 within the city. Food charges per day it is maximum rupees 800. Next one 5 and below. Reimbursement for hotel accommodation or guest house of up to rupees 450 per day. Reimbursement of non-AC taxi charges of up to rupees 113 per day for travel within the city. Reimbursement of food bills not exceeding rupees 500 per day. तो इसका टाइम लिमिट देखेंगे. टाइम रेस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है. इफ द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज लेस देन 6 आवर्स. हमारा एब्सेंस हेडक्वार्टर से रहेगा लेस देन 6 आवर्स. जो हमको मिलेगा 30% ऑफ लॉन्ग सम अमाउंट. जो अबव है होटल चार्जेस है कि ट्रैवलिंग है कि फूड चार्जेस है तो 30% मिलेगा. इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर्स लेस देन 6 आवर्स. 6 to 12 आवर्स 70% ऑफ लॉन्ग सम अमाउंट. एंड एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज ग्रेटर देन 12 आवर्स 100%. ठीक है, तो लेस देन 6 आवर्स 30%, 6 to 12 आवर्स 70% एंड ग्रेटर देन 12 आवर्स 100%. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर विल बी रिकॉर्ड फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट एंड विल बी कैलकुलेटेड ऑन ए पर डे बेसिस. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. अभी देखेंगे कहां पर जो होटल चार्जेस में हमको जब हम रीइंबर्स करना चाहते हैं वहां पर होटल रिसिप्ट देना पड़ेगा कि नहीं उसको चेक करेंगे. रीइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस फॉर लेवल्स 8 एंड बिलो. जो पे लेवल है 8 एंड बिलो उसमें हमको सेल्फ क्लेम करना पड़ेगा. वहां पर बिल हमको सबमिट नहीं करना पड़ेगा. वहां पर ओनली सेल्फ क्लेम करना पड़ेगा फॉर लेवल्स 8 एंड बिलो. पे लेवल 8 एंड अबव वो होटल बिल सबमिट करेंगे, वो सेल्फ सर्टिफाई में नहीं होगा. मगर फॉर लेवल्स 8 एंड बिलो ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा. यहां पर होटल बिल को हम सबमिट नहीं करेंगे. क्लियर. फॉर लेवल्स 8 एंड बिलो द अमाउंट ऑफ क्लेम अप टू द सीलिंग may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of stay. कितना पीरियड स्टे किया, क्योंकि टाइम लिमिट के हिसाब से होगा. लेस देन 6 आवर्स की 6 to 12 आवर्स की मोर देन 12 आवर्स. तो सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम शुड क्लियरली इंडिकेट द पीरियड ऑफ स्टे और नेम ऑफ ड्वेलिंग ओनली. हमको सेल्फ सर्टिफाई ओनली करना है, कोई होटल बिल देना नहीं पड़ेगा. ठीक है, ओनली हम सेल्फ सर्टिफिकेशन में कितना पीरियड तक स्टे किया और नेम ऑफ द ड्वेलिंग ये मेंशन करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा. उसके हिसाब से हमारा रीइंबर्स होगा. तो वो वहां पर क्या है, पे एंड अकाउंट्स ऑफिस वो चेक करता है कि लेस देन 6 आवर्स है ना, 6 to 12 आवर्स है ना, मोर देन 12 आवर्स है. फॉर स्टे इन क्लास एक्स सिटीज द सीलिंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज अप टू लेवल 8 क्लास एक्स सिटीज. The ceiling of for all employees up to level 8 would be rupees 1000 per day. जो होटल चार्जेस क्या था 750 था. क्लियर. तो यहां पर जो अप टू लेवल 8 जो 6 to 8 था पे लेवल, हमारा जो होटल
अकोमोडेशन के लिए मैक्सिमम कितना हम रीइंबर्समेंट करते थे 750, क्लियर। एंड 5 एंड बिलो जो पे लेवल है उनके लिए जो होटल अकोमोडेशन था 450 था। मगर यहां पर दिया है फॉर स्टे इन क्लास 6 सिटीज द सीलिंग फॉर ऑल एम्प्लॉइज अप टू लेवल 8 वुड बी ₹1000 पर डे। बट यहां पर प्रोडक्शन वाउचर सबमिट करना पड़ेगा। यदि आप क्लास 6 सिटीज में कोई होटल में रहते हो तो अप टू लेवल 8 हम ₹1000 पर डे हम रीइंबर्स कर सकते हैं, मगर वहां पर होटल वाउचर हमको देना पड़ेगा। द सीलिंग फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस विल फर्दर राइज बाय 25% व्हेनेवर डीए इंक्रीजेस बाय 50%। जब हमारा डियरनेस अलाउंस 50% हो जाएगा तो हमारा जो होटल चार्जेस है जो पे लेवल के हिसाब से वो 25% बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रैवलिंग में क्या है, कैसे रीइंबर्स होगा, यहां पर हमको कोई वाउचर देना पड़ेगा कि नहीं हम देखेंगे। फॉर लेवल अगेन फॉर लेवल्स 8 एंड बिलो द क्लेम अप टू द सीलिंग में बी पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ वाउचर्स। यहां पर ट्रैवलिंग के लिए कोई वाउचर्स हमको सबमिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हम नॉन एसी टैक्सी के लिए एलिजिबल है विद इन द सिटी। यहां पर कोई प्रोडक्शन वाउचर देना नहीं पड़ेगा। यहां पर भी हम सेल्फ सर्टिफाइड क्लेम करेंगे, मगर सेल्फ सर्टिफिकेशन में मेंशन करेंगे कि पीरियड ऑफ ट्रैवल, कितना टाइम हम ट्रैवल किया और व्हीकल नंबर। यहां पर बिल नहीं चाहिए, ओनली सेल्फ सर्टिफिकेशन चाहिए फॉर लेवल 8 एंड बिलो। सेकेंड वन, द सीलिंग्स फॉर जो अदर जो मोर देन पे लेवल 8 उनको बिल देना पड़ेगा। सपोज कार में ट्रैवल कर रहे हैं वो बिल देना पड़ेगा वहां पर, क्लियर। द सीलिंग फॉर लेवल 11 एंड बिलो, यहां पर याद रखना है इन केस ऑफ ट्रैवलिंग द सीलिंग फॉर लेवल 11 एंड बिलो विल फर्दर राइज बाय 25% व्हेनेवर डीए इंक्रीजेस बाय 50%। ट्रैवलिंग केस में जब डियरनेस अलाउंस 50% हो जाता है तब जो ट्रैवलिंग अलाउंस हमको प्राप्त होता है वो 25% बढ़ जाता है। मगर यहां पर याद रखना है जो पे लेवल होगा वो पे लेवल 11 एंड बिलो, सबके लिए नहीं होगा। मोर देन 11 ये इसमें कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं होगा। देन फॉर जर्नीज ऑन फुट an allowance of ₹12 for kilometer traveled on foot shall be payable additionally। ये फॉर जर्नीज ऑन फुट के लिए है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है द रेट विल फर्दर इंक्रीज बाय 25% व्हेनेवर डीए इंक्रीजेस बाय 50%। ट्रैवलिंग के बाद फूड चार्जेस हम देखेंगे। अगेन हमको फूड चार्जेस के लिए वाउचर देना पड़ेगा कि नहीं। नो वाउचर शैल बी रिक्वायर्ड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ फूड चार्जेस। कोई भी पे लेवल के लिए कोई भी फूड चार्जेस जो होता है उसके लिए कोई भी वाउचर्स हमको नहीं देना पड़ेगा, पूरा टोटल कोई भी पे लेवल के लिए, क्लियर। जैसे 14 एंड अबव, 12 अप टू 13A, 9 to 11, 6 to 8 एंड 5 एंड बिलो जो पे लेवल है उसमें कोई वाउचर्स देना नहीं पड़ेगा। और यहां पर सबके लिए क्या है, जब डीए 50% बढ़ जाता है तब फूड चार्जेस भी 25% बढ़ जाएगा। लॉम सम अमाउंट फॉर फूड चार्जेस शैल इंक्रीज बाय 25% व्हेनेवर डीए इंक्रीजेस बाय 50%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ स्टे और जर्नी ऑन गवर्नमेंट शिप्स, बोट्स एटसेट्रा और जर्नी टू रिमोट प्लेसेस ऑन फूट और मुल्स एटसेट्रा फॉर साइंटिफिक और डाटा कलेक्शन पर्पजेस इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक AFSI, सर्वे ऑफ इंडिया, GSI एटसेट्रा, डेली अलाउंस विल बी पेड एट द रेट इक्विवेलेंट टू दैट प्रोवाइडेड फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ फूड बिल। यहां पर जो रीइंबर्समेंट जो डेली अलाउंस हमको मिलेगा तो वो फूड बिल के हिसाब से मिलेगा। ओके, कब, जब हम कोई साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं, क्लियर, अगर कोई पॉपुलेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो इस केस में जो हमारा डेली अलाउंस होगा वो फूड बिल के हिसाब से रीइंबर्स होगा। However, in this case, the amount will be sanctioned irrespective of actual expenditure incurred on this account, okay, with the approval of the head of the department or controlling officer। तो यहां पर जो ये जो अमाउंट सैंक्शन होगा irrespective of actual expenditure incurred on this account, तो यहां पर ये नहीं है, तो आपको वही टाइम लिमिट के हिसाब से जो मैं बोला लेस देन 6 आवर्स, 6 to 12 आवर्स और मोर देन 12 आवर्स, इसके हिसाब से। मगर हमको जो डीए मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा ना, फूड चार्जेस जो हम डेली अलाउंस में डिस्कस किया उसके हिसाब से मिलेगा। कितना पैसा हम खर्च किया वो नहीं देखा जाएगा, हमको वो उसी टाइम के हिसाब से हम क्लेम करेंगे और फूड चार्जेस के हिसाब से मिलेगा। जैसे 14 एंड अबव 1200 है,
12 अप टू 13 है इट इज 1000 रुपीज है, 9 to 11 इट इज 900 रुपीज है, 6 to 8 इट इज 800 रुपीज है, जो फूड चार्जेस उसके हिसाब से हमको मिलेगा। डीए फॉर फॉरेन ट्रैवल विल बी रेगुलेटेड एज प्रिस्क्राइब्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ऑफिसर्स ऑन टूर may preferably stay in circuit houses, guest houses, inspection bungalows, messes, etc. Government officers may, if they so desire, avail of the rates offered by state tourism departments and ITDC, Indian Tourism Development Corporation, depending on their entitlement. Then eligibility क्या है डीए के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है। कब हमको डीए मिलेगा? डीए इज गिवन फॉर जर्नी परफॉर्म्ड एंड स्टे एट आउट स्टेशन बोथ, इंक्लूडिंग जर्नी एंड स्टे एट आउट स्टेशन फॉर ऑफिशियल पर्पजेस। हम कोई ऑफिशियल पर्पजेस में जा रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग में, कोई टूर में, ऑफिशियल जर्नी होता है, तो जर्नी पीरियड में हमको डीए मिलेगा और आउट स्टेशन में हम जितना दिन स्टे करते हैं उसमें हमको डीए मिलेगा। टू कंपेंसेट पार्टली इन द इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर एंड होटल रेंट व्हेन एप्लीकेबल। Next, normally DA is admissible in case of employees deputed for training prior to appointment to higher post. ट्रेनिंग के लिए हमको DA मिलता है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस देखेंगे, रेगुलेशन ऑफ DA अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर रेगुलेशन ऑफ DA अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस फॉर लोकल जर्नी DA इज ओनली हाफ द रेट। लोकल जर्नी क्या होता है ना, जो जर्नी हमारा मोर देन 8 किलोमीटर होता है। लोकल जर्नी में हम जब लोकल जर्नी आगे मैं डिस्कस करूंगा, तो लोकल जर्नी में जो डीए मिलेगा वो हाफ रेट के हिसाब से मिलेगा, इज ओनली एट हाफ द रेट। इट इज सप्लीमेंट्री रूल 71 में मेंशन है। लोकल जर्नी में आगे मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एनफोर्स्ड हॉल्ट्स एन रूट ट्रीटेड एज ड्यूटी ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशंस कास्ड बाय फ्लड, रेन एटसेट्रा, डीए इज एडमिसिबल। ओके, कभी कभी कुछ बाधाएं आ जाता है, जैसे फ्लड, रेन एटसेट्रा, ठीक है, तो एन रूट में, तब हमको भी डीए प्राप्त होगा। वो मेंशन किया गया है सप्लीमेंट्री रूल 51 में। डीए इज एडमिसिबल फॉर पीरियड ऑफ एब्सेंस एट टूर स्टेशन रेगुलराइज्ड एज स्पेशल कैजुअल लीव ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस, इंपोजिशन ऑफ कर्फ्यू एटसेट्रा। कभी कभी क्या है, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, काम पर कर्फ्यू हो गया, तो हम टूर स्टेशन में पहुंच नहीं पाए, तो उस केस में उस दिन हमको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा और ऑल्सो डीए भी मिलेगा, क्योंकि वो हमारा भूल नहीं है। कभी कभी कर्फ्यू होता है, ओके, कोई डिस्टर्बेंस होता है, इट बेसिकली नॉर्मलाइज पैरालाइज द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द पीपल। सो उस केस में हम टूर स्टेशन में पहुंच नहीं पाते हैं, कि ट्रेनिंग स्टेशन में पहुंच नहीं पाते हैं, तो उस केस में हमको स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा और डीए भी मिलेगा। संडेज एंड हॉलीडेज, नो डीए फॉर संडेज एंड हॉलीडेज अनलेस द एम्प्लॉइज एक्चुअली एंड नॉट मियरली कंस्ट्रक्टिवली ऑन कैंप। यदि संडेज एंड हॉलीडेज में हम ट्रेनिंग स्टेशन को जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और टूर स्टेशन को जा रहे हैं, तब उस केस में हमको डीए मिलेगा, अदरवाइज हमको डीए नहीं मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डीए फॉर संडेज एंड हॉलीडेज अनलेस द एम्प्लॉइज एक्चुअली एंड नॉट मियरली कंस्ट्रक्टिवली ऑन कैंप, ये सप्लीमेंट्री रूल 72 में है। नो डीए फॉर लीव एंड रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, कभी टूर में हम कोई लीव ले लिया और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज ले लिया, उस केस में डीए प्राप्त नहीं होगा। ये भी सप्लीमेंट्री रूल 72 में मेंशन है। फुल डीए इज एडमिसिबल फॉर द फास्ट 180 डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेनिंग के लिए जब जाते हैं फॉर फास्ट 180 डेज, फास्ट 6 मंथ्स, ओके, हमको डीए मिलेगा। बियॉन्ड ऑफ दैट डीए नहीं मिलेगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो फुल डीए इज एडमिसिबल फॉर द फास्ट 180 डेज ऑफ कंटिन्यूअस हाल्ट एट स्टेशन ऑन टूर, टेम्पोररी ट्रांसफर, ट्रेनिंग। नो डीए बियॉन्ड 180 डेज, ये इसको याद रखना है। अप टू 180 डेज डीए मिलेगा, टूर में कि ट्रेनिंग में कि टेम्पोररी ट्रांसफर में, अप टू 180 डेज। बियॉन्ड ऑफ दैट द एम्प्लॉई विल नॉट एंटाइटल फॉर डीए, ये सप्लीमेंट्री रूल 73 में मेंशन है। टूर एंड्स ऑन रिटर्न टू हेडक्वार्टर्स, यदि हम रिटर्न किया, एक टूर स्टेशन से हम रिटर्न किया हेडक्वार्टर को, उसी दिन और एक टूर के लिए हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ उसी दिन, तो जो टूर पैकेज होगा वो अलग अलग होगा, मगर उसी दिन हम रिटर्न किया और उसी दिन फिर हमारा सेकेंड टूर के लिए हम जर्नी स्टार्ट किया, तो हमको जो डीए मिलेगा वो एक दिन के लिए मिलेगा, वो क्लब हो जाएगा।
तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. टूर ends on return to headquarters if a second journey commences on the same day on which an official returns from tour. तो each tour may be calculated separately. जो टूर कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट सेपरेटली होगा, बट द टोटल डीए फॉर ए डे शुड बी लिमिटेड टू 1. ये SR 71 में. उसी दिन हम एक टूर से रिटर्न किया और उसी दिन और एक टूर हमारा कमेंस हुआ, तो उस केस में जो टूर रिइंबर्समेंट होगा वो अलग अलग होगा, मगर उसी दिन जो है जिस दिन हम रिटर्न किया फिर उसी दिन हमारा सेकेंड टूर स्टार्ट हुआ, तो वो उसी दिन का जो डीए मिलेगा वो एक दिन का वो दोनों क्लब होकर मिलेगा. लग्जरी टैक्स whenever charged and shown separately as such in the rental bills submitted by the employee shall be treated as part of lodging charges and reimbursed within the overall prescribed limit of DA. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो डिस्कस किया सेकेंड पार्ट में. तो मेरा फर्स्ट पार्ट देखिए. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु. सो डेफिनेटली अगेन यू विल गेट नोटिफिकेशन. अदर ट्रैवलिंग अलाउंस का अदर पार्ट्स in subsequent time, in postering time, I will upload in my channel. So please subscribe to me so that you can get notification for subsequent videos. So thank you.